190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے فیصلہ آ چکا، مگر اس کی دھول ابھی تک چھٹی نہیں۔ القادر ٹرسٹ، کیا ٹرسٹ ہے بھی یا نہیں؟ اور جج صاحب سے ججمنٹ پڑھتے ہوئے کیا غلطی ہوئی، نشاندہی کس نے کی؟ اور میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ایک بار پھر زیر گردش، اور حسین نواز شریف اس کے اندر کس طرح ملوث ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر؟ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کا ہی۔ تو میاں نواز شریف صاحب چونکہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے اہم اور اچھوتا ٹاپک یہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر وہ اپنے فالورز کو کسی نئی ڈائریکشن کے اوپر لگائیں۔ ابھی تک ان سے کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہو رہی۔ کبھی اس کو مذہبی ٹچ دیتے ہیں کہ یہ جناب یہاں پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی تھی، یا دینی تعلیم اور اس طرح کی، حالانکہ یہ تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، اور وہاں سے میرا خیال ہے شاید 30 کے قریب طالب علم فارغ التحصیل ہوں گے، اور یہ القادر ٹرسٹ جو کہ یونیورسٹی کا وہ کلیم کرتے ہیں، آل ان کو ڈگری جو ہے نا وہ ایشو کرنے کا اختیار نہیں، اور نہ ہی وہ رجسٹرڈ ہے کسی بھی، یعنی کہ ہر یونیورسٹی کمیشن کے پاس بھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، نہ ہی ان کی اتنی تعداد ہے، میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا، اور 200 کے قریب ان کے جو ہے نا وہ طالب علم ہیں اس سو کالڈ یونیورسٹی کے اندر۔ یونیورسٹی کا درجہ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ پی ٹی آئی اس کو کلیم کرتی ہے، اور اسی کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت عمران خان یزید صاحب پھنسے ہوئے ہیں، جب عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا انہوں نے اس وقت کیس کے میرٹ کے اوپر، کیس کی لیگیلٹی کے اوپر انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، اپنے ڈیفنس کے اندر وہ چیزیں نہیں لے کر آئی۔ اب جب سانپ گزر گیا تو اس کی لکیر کو پیٹ رہے ہیں اب، اور مختلف جگہ سے نیوٹن جو ہے نا اٹھ کر اپنے اپنے طور پر پی ٹی آئی کے فالوورز کو مس لیڈ کرنے کے لیے کوئی ویلاگ کر رہا ہے، کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے احمد نوانی صاحب نے بھی ایک ویلاگ کیا، اس کا پی ٹی آئی کے اندر بڑا چرچا ہے، عمران جہاز کا تو آلریڈی ہوتا ہے، اور پھر ایک پریس کانفرنس جناب کھڑکا دی اسی احمد نوانی صاحب کے ویلاگ کو لے کر، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ وکیل بھی ہیں خود، اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ساتھ کمل شوزب صاحبہ نے، اور اسی کا حوالہ دیا کہ یہ کیس بوگس تھا، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ کورٹ کے اندر انہوں نے اس حوالے سے کوئی انہوں نے دلائل نہیں دیے۔ مسئلہ صرف یہی تھا، بار بار اس کو یہی کہتے تھے کہ یہ جو انگلینڈ سے این سی اے سے یہ پیسے پاکستان میں کس طرح ہے، منظوری کس طرح ہوئی، اور کابینہ نے منظوری کیوں دی، کیونکہ اس کا ایک بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اور اس پر پروسیجر کے بعد یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں، کیونکہ ایک تو دو ملکوں کے درمیان، چاہے وہ دو ملکوں کے بے شک ان کے کوئی ڈپارٹمنٹس ہوں، ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ پاکستان کے اندر بھی، یعنی کہ ہر ریاست کے مختلف اس کے اندر جو ہے نا یہ انوالو ہوتی ہیں منسٹریاں، ان کے ڈپارٹمنٹس وغیرہ، فائنانس کی ہوتی ہے، فارن افیئر کی ہوتی ہے، اور سب سے اہم منسٹری وزارت قانون ہوتی ہے، تاکہ آپ ایک لیگل ڈیڈ کسی کے ساتھ سائن کر رہے ہیں تو اس کا ہو۔ تو یہ انہوں نے ایک لیگل ڈیڈ جو ہے نا این سی اے کے ساتھ یہ سائن کی جناب شہزاد اکبر صاحب نے، اور اس ڈیڈ کے ساتھ انہوں نے جو اس ڈیڈ کے اندر جو ہوا، کیونکہ این سی اے نے پیسے جو ہے نا اس کے اوپر ہولڈ رکھا ہوا تھا، اس کو بلاک کیا ہوا تھا، تو انہوں نے بولا کہ یہ پیسے جو ہے نا یہ وہ معاہدہ یہ ہوا کہ جناب آپ میں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ جو ہے نا یہ ٹرانسفر کر دیں، تو اس کے اندر حالانکہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کے اسٹیٹ اکاؤنٹ کے اندر، جو اسٹیٹ بینک کے اندر اکاؤنٹ نمبر 1 ہے، مگر چونکہ یہ ڈیٹ انہوں نے یہ سائن کی، اس لیے وہ این سی اے نے پیسہ ریلیز کر کے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے اندر بھیج دیا، اور پھر قاضی فائز صاحب کے دور میں یہ پیسہ گورنمنٹ کو واپس یہ چلا گیا پیسہ، تو 190 ملین پاؤنڈ کا، اور 190 ملین میں، اور اس کا یہ 18 اپریل
2019 को गालबन इनकी डील हुई थी NCA के साथ। फिर उसके बाद जनाब जो है ना ये जो लिफाफा कहानी ये बताते हैं कि ये किस तरह आया किस तरह नहीं आया। तो काबीना के इजलास के अंदर, क्योंकि वो उसकी किस्तें आनी थी उनके, अप्रैल में 2019 के अंदर उनकी डील हुई, फिर वो पैसे की वापसी शुरू हुई। तो पहली किस्त आई 29 नवंबर 2019 को, और उस वक़्त तक ये काबीना से मंजूरी नहीं हुई थी। और काबीना की मंजूरी के अंदर भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें बाईपास की, जिस तरह ये मैंने अर्ज़ किया है। फिर दूसरी किस्त आई 3 नवंबर को, और 3 नवंबर को जो बंद लिफाफा उन्होंने मंजूर करवाया 3 नवंबर को करवाया, मगर उससे कबल दूसरी किस्त भी आ चुकी थी। और उसके अंदर रियासत का कोई भी डिपार्टमेंट, ना कोई लॉ का, ना कोई फॉरेन अफेयर का, ना कोई फाइनेंस का, और उसके अंदर कोई भी मुलवस नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इमरान खान नियाज़ी साहब ने इसके अंदर अपना करप्शन करनी थी, उन्होंने बड़ा वाइट कलर उन्होंने क्राइम किया। और वाइट कलर क्राइम उन्होंने एक इस तरह भी किया कि वो जनाब उन्होंने जो है ना वो ट्रस्ट अकाउंट के हवाले से, तो उसके ऊपर भी मैं जिक्र करता हूँ। ट्रस्ट अकाउंट का ये उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो नाफिजुल अमल था ट्रस्ट एक्ट 1882 का था, तो उसके तहत अल कादर ट्रस्ट उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया। फिर चंद महीने बाद ही उन्होंने इस ट्रस्ट के अंदर अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट करके इस ट्रस्ट को महदूद कर दिया इस्लामाबाद तक। ये 1882 का जो एक्ट है ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नाफिजुल अमल होगा, बाकी दीगर मुल्क के अंदर तो जितनी भी वो वहाँ पर अमेंडमेंट कर दी। उन्होंने बोला कि जितने भी ट्रस्ट हैं तो वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को दोबारा रजिस्टर करवाएं। और इमरान खान नियाज़ी साहब की फिर हुकूमत भी रही चंद सा, मगर उन्होंने अल कादर ट्रस्ट को नए कानून के तहत रजिस्टर नहीं करवाया। और जब उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया तो इस ट्रस्ट का वजूद ही नहीं है। और जब ट्रस्ट का वजूद ही नहीं तो फिर ट्रस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी थी ये चली गई इनके नाम। और प्रॉपर्टी भी उन्होंने इस तरह ली कि पहले जनाब वो जुल्फी बुखारी साहब के नाम वो प्रॉपर्टी हुई, मलक रियाज ने करवाई। फिर उसके बाद जो है ना ये ट्रांसफ़र होगी जनाब, जो है ना ये ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफ़र होगी, जिसके बेनिफिशरी इमरान खान नियाज़ी साहब और उनकी अहलिया हैं। तो इस तरह इन्होंने ये बारीक वार्ता डाली, क्योंकि ट्रस्ट तो बुनियादी तौर पर ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ही नहीं, क्योंकि जो इन्होंने इनकी अपनी कानून साजी के मुताबिक ही ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये अपने लोगों को ये काका चुकाने के लिए, उनको मिसलीड करने के लिए ये पुरानी रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे जो कि 1882 के एक्ट के तहत हुई थी, जिसको जो कि नल एंड वाइड हो चुकी है कि 6 महीने के बाद तरमीमी जो इन्होंने बिल पेश किए तो उसके बाद ये नल एंड वाइड हो चुकी है। और इस जो जज साहब ने जो जजमेंट दी उसके अंदर भी जो है ना वो सुकम, तो वो सुकम की निशानदेही किसी और ने नहीं की, वो सुकम की निशानदेही की इमरान खान नियाज़ी साहब की बहन ने। तो माशाल्लाह बड़े उनका जहन जो है ना वो अरस्तुओं वाला जहन था। और हालांकि जो वहाँ पर ये जो आइनी शाहदीन है जो कि उधर कोर्ट रिपोर्टर जो उधर गए थे नॉन PTI वाले, क्योंकि उनके हैंड पिक्ड वो कोर्ट रिपोर्टर नहीं थे, उनकी लहदा ट्रोलिंग जो है ना PTI ने शुरू की है। जिस तरह ये रज़वान रज़ी है, इमरान शफ़क़त है, हसन अयूब है और बाकी और 3-4 जो जितने भी ये साफ़ी हैं उनकी जनाब क्योंकि उन्होंने इमरान खान नियाज़ी साहब को सख्त सवाल किए थे, जिस तरह ये चोरी के पैसे से मस्जिद बनाई जा सकती है, नहीं है, उनका जवाब नहीं हुआ। तो इसलिए जनाब क्योंकि उन्होंने इमरान खान नियाज़ी साहब को एक्सपोज किया कोर्ट के अंदर, और उन्होंने यानी कि आंखों देखा हाल, यानी कि सब गुड नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने बोला कि किस तरह इमरान खान नियाज़ी साहब घबराए हुए थे। और यकीनी तौर पर जो है ना इमरान खान नियाज़ी साहब के करीब जो है ना ये कोर्ट रिपोर्टर भी थे और वो जज साहब के भी करीब थे, ताकि जज साहब भी जो कह रहे हैं वो भी सुन सकें, जो इमरान खान नियाज़ी साहब का रद्द-ए-अमल है वो भी सुन सकें और देख भी सकें, ऑब्ज़र्व भी कर सकें। तो उनकी ऑब्जर्वेशन जो है उसके अंदर अथेंटिसिटी है, जबकि लीमा खानम साहबा तो दूर बैठी हुई थी, क्योंकि यही कोर्ट रिपोर्टर अपने मुख्तलिफ वीडियो में अपने एक्स वगैरह पर ये कह रहे हैं कि ये दूर बैठी थी। तो अभी वो उन्होंने आकर जो है ना वो मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने बताया कि जज साहब ने जो है ना वो किसी ने जजमेंट इनको लिख कर दी, इसका आतर जो भी था उसने जज साहब के सामने रखी, जज साहब ने पढ़ दी और जज साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो 171 जो है ना मिलियन डॉलर है, 100 मिलियन पाउंड है, तो ये तो 100 मिलियन का जो है ना वो है केस। तो बहरहाल कुर्बान
मान जाऊँ, ये चीज़ें जो है ना ये आपने उस वक़्त कोर्ट के अंदर जो है ना ये डिफ़ाइन करनी थी। बाहर आकर आप ये छोड़ते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें ये करते रहते हैं। अब इसके अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की भी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो उसके अंदर आ रही है। एक तो वो हवाला दे रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कि उनको जो है ना दोबारा पीटीआई सर्कुलेट कर रही है कि उनको पनामा के अंदर जब 14 साल सज़ा हुई और 21 साल के लिए वो नाअहल हुए और बाकी जुर्माना वगैरह भी उनके ऊपर हुआ, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। हालांकि मियाँ साहब का पास जो पनामा का केस था, पनामा के केस के अंदर हुकूमत जो है ना ये अदालत के अंदर ये प्रूव नहीं हुआ, उनको कामा के ऊपर सज़ा दी गई, उनको पनामा के ऊपर जो है ना वो सज़ा नहीं दी गई। अगर पनामा के ऊपर सज़ा उनको दी जाती तो एक डिफरेंट स्टोरी थी। कामा के ऊपर दी गई कि उन्होंने वो अपने बेटे के पास मुलाजिम हैं, उनके एम्प्लॉई हैं और वो वहाँ से तनख्वाहें नहीं लेते, इवन के तनख्वाहें नहीं लेते तो फिर भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये इलेक्शन के गोशवारों के अंदर ये डिक्लेयर करना चाहिए था कि मैं वहाँ पर मैं एम्प्लॉई हूँ। हालांकि फाइनेंशियल बेनिफिट वो वहाँ से कोई नहीं ले रहे थे। उस वक्त जो सज़ा हुई मियाँ साहब को यकीनी तौर पर ये गलत सज़ा थी, क्योंकि पनामा के अंदर अगर उनको सज़ा हो जाती तो एक अलग स्टोरी थी। तो इसके अंदर भी जो है ना पीटीआई ये इस वक्त ये कह रही है कि जब मियाँ साहब जो है ना पनामा के केस के अंदर फंसे, उन्होंने मलिक रियाज को बसीयत वज़ीर आज़म, जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बुलाया, उनको बोला कि यार ये मेरी इस वक्त पनामा के अंदर जान फंसी हुई, आप हसन नवाज से आप उसका एवन फील्ड का अपार्टमेंट ख़रीदो। तो उन्होंने जनाब 9 अरब का अपार्टमेंट जो है ना 18 अरब की यानी कि दुगनी रकम देकर उन्होंने ख़रीदा मलिक रियाज ने मियाँ साहब के कहने के ऊपर। मगर जबकि दूसरी तरफ जो है ना ये जब आपने ये मलिक रियाज साहब को क्लीन चिट दी, उनके जो है ना वो फ्रोज़न फंड था उसको निकालने के लिए उस वक्त आपने मलिक रियाज साहब को बिल्कुल क्लियर कर दिया, इंक्लूडिंग यानी कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं हसन नवाज के ऊपर, तो वो भी आपने साथ ही क्लियर कर दिया, क्योंकि हसन नवाज शरीफ के साथ इन्वॉल्वमेंट थी मलिक रियाज की। तो मलिक रियाज की जब इन्वॉल्वमेंट थी तो आपने अगर मलिक रियाज को क्लियर कर दिया तो यकीनी तौर पर हसन नवाज भी क्लियर इसके अंदर हो जाते हैं। तो बहरहाल पीटीआई इस तरह अपने लोगों को ये डिट्रैक्ट करती है, करती रहेगी और एक ला हासिल कन्वर्सेशन के अंदर उनको जो है ना ये इंगेज रखती है, ताकि जो है ना वो कोई ना कोई जो है ना उनके पास कोई मवाद हो और 4 दिन के बाद फिर कोई दूसरा मवाद उनको वो दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।